ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਬਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਡੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਰ ਸਤਸੰਗਸ ਆਨਲਾਈਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਹਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, 12 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਤੇ 10:45 ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਨੀਵੇ। ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਸ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੋਸ ਸੋ ਮਚ ਵੇਟ। ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਮਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਆਦਮੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਉਹੀ ਟੋਇਲਟ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਉਣੀ, ਸਭ ਕੁਛ। ਇਟ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਬੈਡ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਟਸ ਨੋਟ ਦੈਟ ਬੈਡ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਹਰ 2-2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੀਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕੀ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਭੁਗਤਦਾ ਪਿਆ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਾਵੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਟੁੱਕ ਦੈਟ ਔਨ ਬੋਰਡ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਨਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਾਈਫ ਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ ਆ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਫੁਲਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ
ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਰੀਹੈਬ ਵਾਸਤੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਜੇ 3/4 ਬੋਤਲ ਪੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਕੱਪ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਕੱਪ ਚੁੱਕ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਿਓ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉਹ ਜੋਤ ਹੋਈ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੈਟ ਜੋਤ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਵ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਸਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਸਟ ਕਾਂਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਰੁਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਆਚੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਭਾਵੇਂ 20 ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘੀ ਹਾਂ, ਜਾਂਦੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਅੰਗ ਸੰਗ। ਬਿਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਜੋਤ ਜਗਾਓ, ਬੈਠੋ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਲਾਵੋ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਦਿਹਾੜੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਨ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੁੱਟੇਗੀ, ਕਦੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਗਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰੀ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਕੋਈ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਨਾਓ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀ ਸਪੈਂਡਸ ਟਾਈਮ। ਜੋਤ ਵੀ ਜਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਘਿਓ ਫਿਰ ਬਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਤੇ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਥੋਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਦੇਖ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਿਓ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਚਦਾ, 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਿੱਚ ਤੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਬਾਂਹ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਂਹ ਫਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੋਰਟ ਕਿਆ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉਰੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਜਿਸਲੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਲਿਆ। ਲੱਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿਆਟਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਾਂਹ ਦੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਗਾ। ਸੋ ਘਿਓ ਲਗਾਇਆ 1-2 ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਘਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ ਆਲ ਡੂ ਦੈਟ ਅਗੇਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਕੌਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਪੀਕੌਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੀ ਪੰਖ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੋਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼। ਮੈਸੇਜ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਸੋ that is all I want to say. Thank you very much for listening. ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपनी मेहर हर संगत ते रखो, हर घर च खुशियां करो, सरबत दा भला करो गुरु जी, सरबत दा भला। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में कोटि कोटि शुक्राना है, कोटि कोटि नमन है। और संगत जी, सबसे पहले मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी जैसा कि कहते हैं कि अपनी जर्नी को शुरू से थोड़ा बताना चाहिए। तो वैसे तो मेरे सत्संग यूट्यूब पे बहुत सारे शेयर पहले भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी लंबे समय के बाद अपना एक शुक्राना सत्संग की, एक या दो शुक्राना सत्संग है, इसमें मैं अपना शेयर कर रही हूँ। तो मैं शॉर्ट में अपनी स्टार्टिंग जर्नी गुरु जी के साथ की मैं बताती हूँ कि मेरी गुरु जी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई होगी 2023 में, वो भी फादर्स डे के दिन, जब उन्होंने मुझे स्वप्न दर्शन दिया था। तो आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट कि गुरु जी मेरे स्वप्न में, मतलब क्योंकि मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और आज भी मानती हूँ, और उन्होंने ही मुझे गुरु जी का हाथ पकड़ाया है। तो उनका भी शुक्राना है, बाबा का भी। तो उन्होंने जब मुझे स्वप्न दर्शन दिया फादर्स डे के दिन, तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि अरे ये तो गुरु जी थे और उस दिन फादर्स डे था। तो उसके बाद से संगत जी, गुरु जी की जो है महिमा कहिए या गुरु जी के ड्रीम दर्शन मुझे बहुत मिले, बहुत मिले ड्रीम दर्शन। और फिर मेरे साथ मतलब कुछ कुछ ऐसी मिरेकल्स और चमत्कार होने लगे कि मतलब फिर
मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरा हाथ जो है वो पकड़ लिया है। और या तो मतलब मैं संगत जी ये कह सकते हैं कि मैं ये कह सकती हूँ कि मतलब मेरा जो है पूरा जीवन ही एक रोज़ का रोज़ एक सत्संग ही है। क्योंकि गुरुजी की कृपा ऐसी है कि कुछ न कुछ मेरे साथ रोज़ सत्संग होते ही रहते हैं। तो बहुत मेहर है गुरुपा की और बहुत कृपा है उनकी। मैं उन्हें गुरुपा या तो कहती हूँ या तो पापा जी कहती हूँ। मैं उन्हें गुरुजी बहुत कम बोलती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे फादर नहीं हैं। मेरे फादर 2021 में गए और उसके 1-2 ही साल के अंदर गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। और जब से वो मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, मुझे अपने फादर की कोई कमी नहीं खलती और ना ही मेरा ध्यान वो उधर ले जाते हैं कि मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, चाहे परेशान दुखी हूँ। गुरुजी की इतनी मेहर है। तो मैं उन्हें पापा जी ही बोलती हूँ। इवन मैं कमेंट कमेंट भी जो भी होते हैं यूट्यूब या फ़ेसबुक पे, मैं पापा जी ही लिखती हूँ। मुझे वही अच्छा लगता है, शायद उन्हें वो पसंद हो गुरुपा को लिखवाना और सुनना मेरे मुँह से, तो मैं वही बोलती हूँ। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी संगत जी। तो पहले तो ये था कि मेरे बेटे का एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर, तो मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था। तो उसके बाद हुआ क्या कि मतलब गुरुपा की मेहर से तो वो सब चीज़ अच्छा ही है और अच्छा ही चल रहा है। अभी इसी साल 2025 में मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर की हैं जुलाई में। तो मेरे बेटे का समर वेकेशन हुआ था, तो हम लोग थे, तो उसी हम लोग को फिर आना था जहाँ पे मेरा मेरा बेटा पढ़ता है। तो उसी के मतलब जिस दिन हम लोग को कहीं निकलना था, पैकिंग वगैरह सब डन थी, तो उसी टाइम मेरी मदर इन लॉ का मतलब एक्सपायर कर गई। तो गुरुजी के या तो यूँ कहिए और मतलब गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुलाया। वो भी गुरुजी को बहुत मानती थीं, बहुत ही मानती थीं और वो उन थोड़ी कष्ट में भी थीं। लेकिन जब उन्होंने कहा गुरुपा से कि गुरुजी अब मुझे आप ये भी एक सत्संग है संगत जी, कि ले चलिए, तो इवन मतलब विदिन 10 मिनट्स संगत जी गुरुपा उनको अपने साथ ले गए, वो उन्हीं के पास हैं। ये तो पूरा मतलब श्योर है। तो वही मैं कह रही थी, तो वही हम लोग को निकलना था, कॉलेज स्टार्ट होने वाला था समर वेकेशन के बाद। लेकिन अब चूँकि मम्मी जी का ऐसा हो गया, तो हम लोग को फिर 15 दिन रुकना पड़ा और बेटे का क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी। और जब बेटे ने फ़ोन किया कॉलेज में कि मेरी दादी का ऐसा हो गया है, तो टीचर वगैरह बहुत मतलब हर आदमी इतना नहीं समझता ना संगत जी, तो उन लोग को एक आध लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा परेशान मत लो हो, गुरुजी हैं ना, तो वो सब सँभालेंगे। तो हाँ था संगत जी, तो फिर हम लोग को रुकना पड़ा 15 दिन। फिर हम लोग 15 दिन के बाद जब आए हैं, तो 15 दिन तो पढ़ाई चली पूरी। एक कॉलेज तो स्टार्ट था, लेकिन बेटे की जो है क्लासेस मिस हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब वो बेटा गया है अपना क्लास वगैरह अटेंड करने के लिए, तो अटेंडेंस वगैरह क्या जब कम रहती है तो ये लोग एग्ज़ाम में बैठने नहीं देते हैं। तो ये परेशान था, तो हम लोगों ने कहा कोई परेशान मत हो, और कुछ जब ऐसा टाइम आएगा एग्ज़ाम का, तो हम कुछ ऐसे इश्यू होंगे, तो हम लोग उसको देखेंगे और गुरुजी पे भरोसा रखो, सब सही करेंगे। तो फिर संगत जी और उसके बाद दिवाली हुई है आई थिंक, और उसका तो उतना क्लास मिस हुआ, तो उतनी पढ़ाई तो उसकी गई। उसके बाद क्लासेस चली हैं आपका अगस्त, सितंबर, ऐसे आई थिंक अक्टूबर तक चली हैं। मुश्किल से मतलब 2 महीने की उसकी पढ़ाई रही होगी, आधी थोड़ा तो नहीं उसका चला गया। तो उसके बाद दिवाली की छुट्टी हुई, और दिवाली की छुट्टी के बाद इन लोगों के एग्ज़ाम होने थे दिसंबर 24 से। और दिसंबर 24 से एग्ज़ाम होने थे, और इन लोगों ने जो है कॉलेज वालों ने पेपर जो है वो जल्दी कर दिया। पहले ही रख दिया इन लोगों ने, नवंबर में आई थिंक, हाँ 7 नवंबर को ही रख दिया। तो जब भी मैं 7th डेट मेरे उसमें आती है संगत जी, तो मैं समझ जाती हूँ सब इसमें गुरुजी की ही रज़ामंदी है। अच्छा, तो फिर उसके बाद अब बच्चों के सारे बच्चे परेशान कि पढ़ाई तो पूरी हुई नहीं। इन लोग का मतलब अभी सडन पढ़ाई हुई और सडन ही पेपर का डेट ऐसे चेंज हो गया, और फेस्टिवल के बाद तुरंत। और मेरे बेटे का तो शुरू में क्लासेस मिस हो गया, तो ये और वो हो गया परेशान, ये पेपर का कैसे क्या होगा इतना जल्दी। तो हम कहे मत परेशान हो, गुरुजी हैं ना, सब ठीक करेंगे, मैं बार-बार यही कहती हूँ। तो उसके बाद पेपर वगैरह इसने दिया अपना,
इस थर्ड सेमेस्टर का पेपर इसने दिया वगैरह अपना। तो इसका पेपर हुआ वगैरह, तो इसको था कि भाई पढ़ाई तो हुई नहीं इतनी अच्छे से, तो देखो फिर क्या होता है, कहीं मेरा बैग ना आ जाए। तो चाहे कुछ भी, हम कहे कोई बात नहीं, बैग भी आएगा तो कोई बात नहीं। और सब जो है, अगर बैग भी आएगा तो कोई परेशान मत हो, तुम बैग दे देना, अगर एक दो सब्जेक्ट में आएगा भी तो कोई बात नहीं, अगर या तो किसी में भी आएगा तो फिर तुम अपना रिलैक्स होके पेपर दो और रिलैक्स रहो अपना, बाकी गुरु पापे छोड़ दो। तो फिर संगत जी अच्छा, तो फिर इसने पेपर वगैरह अपना दिया। फिर हम लोग अपना छुट्टी में अपना घर गए। फिर अभी क्लासेस आपकी जो है स्टार्ट हुई हैं आफ्टर विंटर वेकेशन। तो संगत जी 7th ये सत्संग पता नहीं कब मतलब जाएगा चैनल पे। मैं बता रही हूँ, आज थर्सडे का दिन है और आज है 8 जनवरी। और कल था 7 जनवरी। तो संगत जी हुआ क्या कि फिर हम लोग ऐसे ही बाहर निकले हुए थे बेटे के साथ। तो फिर बेटे का अचानक से इसने बोला हमसे कि मम्मा मेरे रिजल्ट आ गया है। हमने कहा रिजल्ट आया, तो क्या, हमने कहा अच्छा अच्छा देखो रिजल्ट अच्छे से ध्यान से देखना। तो इसने सब अपना देखा। तो इसने बोला कि मतलब सारे पेपर संगत जी, सारे पेपर में ये मतलब क्लियर था, मतलब अच्छे मतलब अच्छा इसने निकाल लिया सारे सब्जेक्ट में। मतलब किसी में भी इसका बैक नहीं आया, क्योंकि संगत जी मैं भी अपने मन की बात कहूँ तो मैं भी मतलब मुझे भी था कि मैं परेशान नहीं होती हूँ, जब से गुरुपाल और बाबा मेरे जीवन में हैं तो मैं परेशान एकदम नहीं होती, क्योंकि सब करने वाले वही हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो लेकिन मैंने मतलब सब सरेंडर भी मैंने किया हुआ है गुरुपा को, मैं अपने उसमें कुछ नहीं लेती हूँ, मैं एकदम रिलैक्स रहती हूँ। तो फिर मैंने कहा बैग भी आएगा तो कोई नहीं, मैंने पहले बताया ही आप लोगों को। तो जब उसने मुझे बताया कि मम्मा मेरा किसी में भी बैक पेपर नहीं आया है, आई वॉज टोटली सरप्राइज एंड शॉक्ड। एंड मुझे मतलब मैं क्या ही बताऊं संगत जी, मैंने तुरंत वहीं पे, हम लोग बाहर थे, हमने तुरंत हाथ जोड़ा, गुरुपा का अपने बाबा का शुक्राना किया कि ये इट वाज अ मिरेकल फॉर मी एंड फॉर माय होल फैमिली। हाँ, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मतलब इसका एक भी बैक पेपर नहीं आया, और ये बहुत बड़ी मेरे पापा जी की कृपा थी, जो कि मैं बता नहीं सकती। मैंने शुक्राना किया, मैं जहाँ भी थी वहीं खड़े होके मैंने उनका शुक्राना किया, बाबा का शुक्राना किया। और उसके बाद संगत जी, जब आज मैं थर्सडे का दिन था, आज मैंने गुरुपा को कड़ा प्रसाद बना के मतलब चढ़ाया, उनको भोग लगाया, शुक्राना किया उनका। मतलब मैं क्या ही बताऊं गुरुपा का। बस यही मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने पहले भी अपने सत्संग में बोला है कि बस ये सारा खेल विश्वास का है। गुरुपा परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं, मैंने शुरू पहले भी बोला है। लेकिन जो उनके विश्वास पे खरा उतर जाता है संगत जी ना, जो उनके टेस्ट में पास हो जाता है ना, फिर गुरुपा मैं क्या ही कहूँ, उसका हर दिन इतना सत्संग होता ही होता है। और इंसान का जीवन है तो सुख दुख तो आते रहते हैं, लेकिन अगर उस चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अगर उस पर आदमी विश्वास पे और सरेंडर, टोटली सरेंडर करके, क्योंकि टोटल सरेंडर करना सबके बस की बात नहीं होती है, लेकिन हमारे बस में कुछ नहीं है संगत जी। टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे बस में कुछ भी नहीं है, ना हमारा कुछ प्लान करने से होता है, ना हमारे कुछ सोचने से होता है। होता वही है जो राम रचि रखा, जो ऊपर वाले चाहते हैं वही होता है। इसलिए आदमी को सरेंडर करके रहना चाहिए, जो कि शायद इतना आसान नहीं है। तो एक तो मेरा सत्संग ये था संगत जी, और दूसरा मैं बहुत जल्दी अपना सत्संग सुनाती हूँ, शायद ये लंबा हो रहा है। और ये सत्संग ऐसा था कि जैसे कि मैंने बताया कि विंटर वेकेशन के बाद हम लोग आए, बेटे का कॉलेज स्टार्ट होना था। तो मेरे हस्बैंड को हम लोग को ड्रॉप करना था, बाई रोड बाई कार हम लोग को आना था। तो उसके पहले मेरे हस्बैंड गए, मेरी कार जो है उसमें कुछ एसी वगैरह की प्रॉब्लम थी, कूलिंग वगैरह कुछ कम थी काफ़ी, और कुछ म्यूज़िक सिस्टम में भी प्रॉब्लम थी। तो वो कुछ दिन पहले, आने से पहले गए थे सर्विस सेंटर पे कार को लेके और दिखाने गए। तो वहाँ पे गए उन्होंने, और जो सर्विस एडवाइज़र होते हैं उनसे उन्होंने बात की, अपनी प्रॉब्लम बताई। तो उसने बोला कि हाँ हाँ ठीक है, और ये एसी का जो कूलिंग वगैरह कम बता रहे हैं आप, वो सब चेक हो जाएगा, और ये आपका म्यूजिक वगैरह का जो भी प्रॉब्लम है, ये सारा लेवे के आपको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ संगत जी। ये सारा एस्टिमेट पूरा उसने बताया कि 10,000 का आएगा। तो इन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन काम हमारा अच्छा होना चाहिए। तो उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल।
तो उसने देखा, फिर उसने अपने नीचे वाले को, जो भी कहते होंगे, उसको बुला के कराया, चेक कराया एडवाइज़र ने। तो उसने भी देखा, तो उसने भी बोला हाँ, हाँ, कूलिंग वगैरह वही सेम प्रॉब्लम, ठीक है, और मैं ठीक कर दूँगा, समय लगेगा, हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इन्होंने पूछा हस्बैंड ने कितना आएगा, मतलब पूरा टोटल एस्टिमेट, तो उसने बोला 10,000। तो बोले ठीक है। अब संगत जी सुनिए, गाड़ी मेरी गई, वहाँ उन्होंने एसी की प्रॉब्लम देखी, उसमें प्रॉब्लम थी, गैस कुछ कम था, गैस फ़िल हुआ होगा, म्यूज़िक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी, वो भी उसने कुछ ठीक किया जो भी। अच्छा, फिर ठीक है, कार मेरी आई, उसके बाद एस्टीमेट बना उसका। अब उसका एस्टीमेट जब बना, तो लड़की कोई थी रिसेप्शन पे, उसने बनाया। हस्बैंड ने पूछा कितना हुआ, मुझे कितना देना है? तो उसने बोला आपका तो ज़ीरो अमाउंट शो कर रहा है, कोई 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 उसमें मतलब चार्ज नहीं बता रहा है। तो ये ही वॉज सरप्राइज, हस्बैंड वॉज सरप्राइज, यार ये कैसे हो सकता है? उनको भी था कि नहीं, 10,000 तो 6,000 तक तो लग ही जाएगा। तो उन्होंने फिर एडवाइज़र को बुलाया, और जो 1-2 लोग से मिले थे शुरू में उनको बुलाया। तो सब लोगों ने बोला नहीं, नहीं, क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, चार्ज वार्ज कुछ नहीं लगेगा, और ठीक हो गई, और कुछ नहीं, इसका हो गया इतना, मतलब कुछ भी पैसा नहीं लगेगा उसमें। पता, आई एम हस्बैंड वाज सरप्राइज्ड। अब ये जब वहाँ से गाड़ी लेके निकले हैं, तो रास्ते में मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि मतलब वो रास्ते में कितनी बार उन्होंने शुक्राना बोला कार में, फ़ोन पे, कार में से, कि गुरु पा का इतना शुक्राना, गुरु जी का इतना शुक्राना, वो भी मानते हैं गुरु जी को। तो गुरु जी का इतना शुक्राना है, वो सारी बात मुझे बताने लगे। तो मैंने बोला कि अरे, तो मेरे गुरुपा है ही ऐसे ना, मेरे गुरुपा है ही ऐसे, अभी आप जानते क्या हैं उनको, वो है ही ऐसे, इतने प्यारे हैं कि अब आप देखते चलिए। तो वो एकदम खुद ही वो मतलब सरप्राइज थे संगत जी, की मतलब जहाँ 10,000 का खर्चा उन्होंने बताया था, कंपनी वालों ने, सर्विस सेंटर वालों ने, और वहाँ पे मान लीजिए गैस की कूलिंग कम थी, उसमें कुछ कुछ तो गैस फिल हुई, कुछ तो म्यूजिक सिस्टम में ठीक हुआ, कुछ तो लगा, तो तभी तो वो थोड़ा ठीक हुआ जो भी था। तो एटलीस्ट संगत जी, मैं कहती हूँ कि कुछ तो पैसा लगना चाहिए था, नहीं 10,000 नहीं, 6,000, 5,000 भी नहीं, 500, 1,000, 2,000, 15, कुछ तो लगना चाहिए था, कुछ भी पैसा नहीं लगा। उसने बोला ज़ीरो अमाउंट शो कर रहा है ये। मेरे हस्बैंड एकदम शॉक्ड थे, सरप्राइज थे, रास्ते भर उन्होंने मुझे फ़ोन पे शुक्राना बस किया गुरुजी का। मैंने कहा अब घर आइए, बात होती है। और मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो रिलैक्स रहती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु पा की कृपा, मेरे बाबा की कृपा, मतलब उनके मिरेकल्स तो मेरे जीवन में रोज़ ही, मैंने जैसे कहा, बहुत है। मैं आगे भी सत्संग शेयर करूँगी अपना। तो वो उन्होंने घर पे आया, तो फिर मुझे सारा, फिर मैंने कहा मुझे शुरू से बताया, क्योंकि मुझे गुरु पा की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने बाबा की, गुरु पा की बातें कोई भी करता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे पूरा शुरू से बताया, मैं बहुत खुश हुई। मैंने तुरंत जो है कड़ा प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद बना के फिर गुरु पा को भोग लगाया, उनका शुक्राना किया। तो संगत जी, बस यही मैं कहूँगी कि आप बस अपना दृढ़ विश्वास अपने गुरु पा, या कोई भी आपके जो भी इष्ट हैं, उन पे बनाए रखिए, और अपना मतलब अपने सच्चे मन से अपना लगे रहिए, और अपना गुरु पा पे बस विश्वास अपना बनाए रखिए। तो गुरु पा आपको कभी निराश नहीं करेंगे। बहुत लंबा सत्संग हो गया उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन अच्छा भी लगता है ना कि मैं क्या सत्संग में होता है कि ये भी बता दूँ, वो भी बता दूँ। चलिए, अब नेक्स्ट उसमें बताऊँगी। तो सारी संगत को जय गुरु जी, एंड शुक्राना गुरु जी, कोटि-कोटि शुक्राना है सबकी, सभी संगत पे गुरु पा अपनी मेहर हमेशा बनाए रखिएगा आप। कोटि-कोटि शुक्राना है। ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ पापा जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज़। वी ऑल नीड योर ब्लेसिंग्स ऑलवेज़। शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।